Dear students, today I will read you lesson 3 of your book Harmony, Discovering Truth, the Sagas continued by A.R. Williams. The first paragraph of the lesson is, he was Pharaoh. He was just a teenager when he died. जब वह मरा तो वह युवावस्था में ही था. He was just a teenager when he died. जब उसकी मृत्यु हुई वह किशोरावस्था में था. The last heir of a powerful family. एक शक्तिशाली परिवार का वो अंतिम उत्तराधिकारी था. That had ruled Egypt and its empire for centuries. जो कि इजिप्ट और इसके साम्राज्य पे कई शताब्दियों तक राज किया था, शासन किया था. He was laid to rest, laden with gold. सोने से लदा हुआ उसको दफन कर दिया गया. And eventually forgotten. और अंततः उसे भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, अंततः 1922 में उसके मकबरे की खोज के बाद the modern world has speculated about what happened to him. आधुनिक दुनिया के लोग, दुनिया संसार के लोग इस विषय में जो है आकलन लगाना शुरू कर दिए कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, कि उसको क्या हुआ. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. लोगों को इस बात की अधिक संभावना थी कि शायद तट जो है, तट की मृत्यु का कारण उनका मर्डर किया जाना हो. नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years. उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले तट हैज अंडरगॉन ए सीटी स्कैन. तट के डेड बॉडी का जो है सीटी स्कैन कराया गया. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. जो कि जिससे कि उसके जीवन और मृत्यु के विषय में नया सुराग मिले. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोर्निस्टिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरो. और इस बालक फैरो की जो है सही और ठीक ढंग से वैज्ञानिक जांच किया जा सके. Now the explanation into English. Here in this paragraph, the writer tells us that when Tut died, he was a teenager and he was the last heir of that powerful family that ruled Egypt and its different empires for centuries. His dead body was laden with gold and he was buried. After the time being, he was completely forgotten. When the discovery of different tombs were being done in 1922, the people of the modern world speculated about the death of Tut. They thought that his death was due to the murder. For the first time after 80 years, his dead body was taken out from the tomb for the CT scan so that the reality
of his death, of his life, of his death may be clear, and it could be investigated scientifically. Now the second paragraph. An angry, yes, an angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from the resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब राजा टुट को उसकी कब्र मिस्र की समाधि क्षेत्र से, जिसे कि राजाओं की घाटी कहा जाता है, कि बाहर निकाला गया, तो क्रुद्ध पवन के झोंकों ने भूत जैसे धूत के शैतान खड़े कर दिए। बहुत विशाल काले बादल सूने आकाश में पूरे दिन भर छाए रहे और तारे भी मानो वो भी सुरमई की पिटारी में छुपे हुए थे। It was 6 PM on 5 जनवरी 2005। ये घटना, ये बात जो है 6 बजे 5 जनवरी 2005 की। The world's most famous mummy glided head first into CT scanner। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी के डेड बॉडी को जो है CT स्कैनर में सिर के बगल धीरे धीरे डाला गया। Brought here to prove the lingering medical mysteries of his little understood young ruler, जिससे कि इस नौजवान शासक की मृत्यु का सही ढंग से परीक्षण किया जा सके। Who died more than 3,300 years ago, जो कि 3,300 वर्ष पहले जो है मर गया था। Here in this paragraph, the writer tells us that when the dead body of Tut was taken out from the burial place, the nature also presented its anger. The strong wind began to blow, and the dark clouds were always hovering into the deserted sky. The stars were also hiding in the cascade grey. This incident took place on 6 PM. This accident took place on 6 PM on 5 January 2005. The most famous mummy of Tut was first of all kept into the CT scan by the bedside, so that the scientific mysteries of his death may be clear. Who was a young ruler and who had died more than 3,300 years ago. Now the third paragraph. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb from 26 feet underground to pay their respect. दोपहर के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व के हर कोने से पर्यटकों की एक लंबी लाइन उमड़ पड़ी, जो कि इस कटे हुए चट्टान में कटे हुए रास्ते से होते हुए 26 फीट के ज़मीन के नीचे तट के, जहाँ पे तट की बॉडी दफन की गई थी, वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इकट्ठा हुई। They gazed at the murals of the walls of the burial chamber। वे सब मम्मी के नक्शों से जो है कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे, दीवार पे जो चित्र बनाए गए थे उसको देखते रहे। एंड पियर और तट के
गिल्डेड फेस, सुनहरे चेहरे पे झांकते रहे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउट कफिन लिड, वो ममी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था तथा ताबूत के बाह्य ढक्कन पे बना हुआ था। आउटर कफिन लिड मीन्स ताबूत के बाहरी ढक्कन पे ये बना हुआ था, जो कि ममी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ दर्शक फुसफुसाते हुए गाइडलाइनों में पढ़ते रहे, गाइड बुक में अध्ययन करते रहे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, अन्य जो है शांति से खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डरिंग टच अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वे जो है अल्प आयु में मृत्यु के विषय में गंभीरता से सोच रहे थे। आर वांडरिंग विथ ए फीवर, अथवा वे भय से कांपते हुए आश्चर्य कर रहे थे इफ द फरोस कर्स, कि क्या ये जो है फारो का श्राप तो नहीं है, ये फेरो का कोई श्राप तो नहीं है। ये भी सत्य हो सकता है, उनका श्राप था। डेथ आर मिसफॉर्च्यून्स फॉलिंग अपॉन दोज हू डिस्टर्ब हिम, मृत्यु अथवा विपत उन्हीं पे आती है जो उनके शांति को भंग करते हैं। नाउ द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। हियर द राइटर टेल्स अस दैट आफ्टर नून ए लॉन्ग लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड came down 26 feet underground, where the burial place of Tut was by cutting the narrow rocks was built. They presented here to pay their tribute, to pay their respect. They stared at the walls where the mats were constructed, where the mats were made. And some looked into the gilded face of Tut, which was the just similar like the mummy of his body, which was constructed on the lid of the coffin. There were some visitors who were whispering, who were reading in whispering voices from the guidebooks. Others were standing silently and thinking seriously about the untimely death of Tut, and they were wondering whether it might be the curse of Pharaoh, which is true. The curse of the Pharaoh is that death or calamities fall on them who disturb his peace of mind. Now the fourth paragraph. The mummy wine. The mummy is in very bad condition. मम्मी जो है बड़ी बहुत ही खराब स्थिति में थी, in very bad condition, because of what Carter did in 1920, क्योंकि कार्टर ने 1920 में ऐसा कुछ कर दिया था। जाहिर हुसैन ने इस बात को कहा, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी, जो मिस्र के पुरा वस्तुओं के उच्चतम परिषद के महासचिव थे। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जब वो लंबे समय तक उस शरीर पे झुके और देखते रहे। कार्टर हवार्ड कार्टर देखिए, कार्टर जिसको कि हवार्ड कार्टर कहा जाता है, वाद द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो एक अंग्रेज पुरातात्विक वेत्ता थे, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जो कई वर्षों तक निरर्थक प्रयत्न करने के बाद 1922 में
डेड बॉडी तट के मकबरे की खोज किया। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैन सेक इन एंटीक्विटी, इसकी जो कुछ वस्तुएं थी वो जल्दी से जो है उसके अंदर की सामग्री अद्यप पुरातत्वों की खोज में जल्दी से खोज ली गई थी। वेयर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपने आप में पूर्ण था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फरोस लीजेंड। ये जो है सबसे समृद्धशाली जो है राशि परिवार का एक संग्रह था जैसा कि कभी भी नहीं पाया गया, और ये पौराणिक फरो की एक पौराणिक गाथा बन गई। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, सोने की कलाकारियाँ, आश्चर्य करने वाली सोने की कलाकारियाँ, डियर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी आंतरिक चमक, मीन टू गारंटी रिसरेंस, इस बात का साबूत देती हैं। कार्ड इज सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, खोज के समय लोगों के मन में एक भावना पैदा कर, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी उस पर बहुत ध्यान रहा। बट टट वाज आल्सो बरीड विथ एवरी थिंग ही हैड वन इन द आफ्टर लाइफ, तट के साथ एवरीडे थिंग्स, रोज रोज की वस्तुओं के साथ दफन कर दिया गया था जिन वस्तुओं की ज़रूरत उनको दूसरे जन्म में पड़ती, जैसे बोर्ड गेम्स थे, ब्रोंज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट, केसेज, फूड एंड वाइन, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वेयर बरीड विद द डेड बॉडी ऑफ टट। नाउ द explanation into English. Here the narrator tells us that whatever was done in 1922 by Carter, that had made the bad condition of the mummy. Jassy Hawass, whom looked for some time the dead body of that, he declared it. The British archaeologist Carter he discovered the dead body for many years, and at last in 1922 he shut out the tomb. The materials with the tomb was searched very soon, but it was complete in itself. It was the most prosperous content of the royal family, and it had become part of the legend of Pharaoh. At the time of search, at the time of discovery, the golden things were so much that they create the sensation in the mind of the people, and they attract the mind of all even today. The things that were necessary in the afterlife were also kept with the dead body of them. For example, there were board games, bronze razor, linen, undergarment, food and wine. All these were buried with the dead body of